Let us start today's topic, homogeneous linear equation, that is quasi-linear equation. Okay, quasi-linear equation. So we share the PDF file. That let us see linear difference homogeneous linear equation. Yes, sir. Okay, so let us start. And equations of the form x to the power n d2 to the power n dx to the power n plus p1 x to the power n minus 1 dn minus 1 y dx to the power n minus 1 plus up to so and so plus pn minus 1 x dy by dx plus pn y equal to capital X. Our p1, p2, p3 up to pn are constant, and x, capital X, here capital X is a function of x, is called homogeneous linear equation. The usual transform, this form of equation we can solve by usual transform. In this case we have z equal to log of x, z equal to log of x, that is x equal to exponential of z, so that dz by dx is equal to 1 by x. The equation 1 is equation 1. Here equation 1 is converted into the equation with constant coefficient, that is dy by dx can be transformed into dy dz into dz by dx. All of us see that dy by dx can be written as in this form. सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो. Bolo. Here dy by dx can be written as dy by dz into dz by dx. So 1 by x dy by dz, that is the whole dy by dz already have dz by dx equal to 1 by x. So 1 by x will have, and dy by dz को can be written as capital dy, where capital D for dy by dz को हम लोग capital D लिख रहे हैं, right? Again second derivative d2y by dx square is equal to dy by dx into dy by dx. The dy by dx can be already have, and dy by dx can be written as in the form of 1 by x into dy by dz. Here already we have 1 by x dy by dz. So according to here by parts, ठीक है, by parts we have, देखो 1 by x is a u function and dy by dz is equal to v function, that is a product of two functions, right? So 1 by x you already have derivative of v, that here y को डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ पर with respect to z, ठीक है? इसको तो with respect to x डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसको सबसे पहले इसको हम लोग with respect to z में ही करो, ठीक है? z में करो तो क्या d2y by dz हो जाएगा, और जो dz by dx हट में आ रहा है, समझ रहे हो ना? माइनस dy by dz ऑलरेडी है, और 1 by x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा? माइनस 1 by x स्क्वायर, माइनस 1 by x स्क्वायर. According to this line, clear or not? This line? So
1 by x here, dz by dx already have 1 by x. So 1 by x into 1 by x, that is 1 by x square. d2y by dz square, d2y by dz all square already have, minus 1 by x square and dy by dz. So 1 by x square will be common. Here d2y can be written as d2y. Here dy by dz can be written as dy. So एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हम लोग डी कॉमन ले लो तो डी इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। क्लियर है कि नहीं है अभिषेक कुमार? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। अबुल कलाम? यस सर, क्लियर है। क्लियर है? तो सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव वी हैव, सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, एक्स क्यू डी टू डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई अप टू सो एंड सो। ठीक है, एंड सो वन, माने एक्चुअली एक्स क्यू में क्या आ जाएगा, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। उसी बार हम लोग कंटिन्यू इन द प्रोसेस एन टाइम तक जा सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मेन इक्वेशन क्या है, इक्वेशन वन जो है, इक्वेशन वन जो दिया हुआ है हेयर, इक्वेशन वन कैन बी टेन एच। देखो एन टाइम्स में क्या होगा, ये होगा, उसका डिक्रीज कर। हेलो बोलो सर, कॉमन कैसे निकाल लिए डी को? डी कॉमन कैसे कहा, तो यहाँ पर देखो ना यार, डी कॉमन लो ना ऐसे। सर डेरिवेटिव है ना, कॉमन कैसे निकलेगा? हाँ एक्चुअल डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव है तो जैसे कि हम लोग यहाँ तो ऑलरेडी लिख दिए ना, यहाँ तो लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी लिख सकते हैं। ठीक है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को ऐसे ही सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक्चुअल थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, हमारे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन ये है जो हम लोग z इक्वल टू लॉग ऑफ x को पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सो dy बाई dx को हम लोग लिखेंगे, हम लोग ये x है ना, ये जो x जो है x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा, x dy बाई dx, x dy बाई dx को हम लोग लिखेंगे dy। ठीक है, उसी प्रकार ये जो x, उसके बाद यहाँ पर क्या x स्क्वायर डी टू वाई डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, d इंटू डी माइनस वाई वाई। Similarly, x cube d2y by dx cube square q is equal to d into d minus 1 d minus 2 y up to so। ठीक है, so equation 1 reduces to this। अब देखो सॉल्व द इक्वेशन, देखो ध्यान से समझो कि अकॉर्डिंग टू हर प्रॉब्लम x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। क्लियर है? इसको हम लोग z इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पुट करेंगे तो दैट इज क्या, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, एंड राइटिंग d कैपिटल D इक्वल टू d बाई dz वी हैव देखो तो क्या होगा, वी हैव x dy बाई dx को हम लोग कैपिटल dy लिखेंगे और x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लिखेंगे d इंटू डी माइनस वाई वाई। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है, एक गिवन इक्वेशन, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे तो x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैन बी टेन एज d इंटू डी माइनस वाई इंटू वाई, फिर क्या है माइनस x dy बाई डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे dy, थ्री वाई तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, सो एक्स स्क्वायर विल हैव एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, लॉग ऑफ x क्या होगा, लॉग ऑफ x इक्वल टू z। ठीक है, अब देखो इस फॉर्म में आ गया कि नहीं,
Anyone student? सर डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा सर। हाँ बोलो। डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सर। डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे बोलो? डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन तुम कैसे लिखोगे? एक्चुअली होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो तुम्हारा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो ये जो अकॉर्डिंग टू तुम्हारे सिलेबस में देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ए सिलेबस। देखो ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू ए सिलेबस देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, सिलेबस दिखा रहे हैं। सिलेबस फॉर CSC स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर, राइट? अकॉर्डिंग टू ए सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है। ध्यान से प्रॉब्लम यहाँ समझो। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है? इसके पहले हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा चुके हैं, ठीक है? यस सर। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ लिख रहा है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेरिएबल कोएफिशिएंट बोल रहा है। दैट इज यस सर। that is this type of equation have higher order linear differential equation with variable coefficient। ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है कि नहीं है? क्योंकि इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल है x स्क्वायर, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है? वेरिएबल, दैट इज x। समझ रहे हो ना? यस सर। क्वेश्चन में सात प्रॉब्लम पढ़ाए थे जो एज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। डायरेक्ट कांस्टेंट कोएफिशिएंट में क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये वेरिएबल कोएफिशिएंट। यस सर। हाँ यस सर, हो गया सर। वेरिएबल में हाँ वेरिएबल कोएफिशिएंट। सो दैट इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। समझ रहे हो? तो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को ही हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये तुम्हारी इक्वेशन क्लियर है कि नहीं? बोलो इस जगह क्लियर है? यस सर। ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन वी हैव m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। Auxiliary equation we have. Anyone student? Tell me. अभिषेक कुमार। सर जो डी स्क्वायर है उसको 2m स्क्वायर लिखे ना सर, और माइनस 2d को 2m लिखे है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले तो वही बताए थे हम लोग। यस सर। इसके पहले तो हम वही बताए थे ना, जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका तो वही है। यस सर। समझ रहे हो? इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैपिटल डी का अक्षर लिख तो दिए हैं। कैपिटल डी क्या लिखा हुआ? डी बाई डी जेड, ठीक है? तो यहाँ क्या डी बाई डी जेड लिखेंगे तो यहाँ क्या d2y बाई डी जेड इसको हो जाएगा माइनस 2 dy बाई डी जेड, ठीक है? माइनस 3y। तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा बोलो तो? m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 और 3। दैट इज द वैल्यूज ऑफ have the distinct and real and distinct है कि नहीं है? 1 और 3। so CF equal to C1 exponential of 3 plus C2 is equal to exponential of minus Z। यस सर। Anyone? Tell me. अबुल कलाम। यस सर। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Complementary function will have
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन Yes, sir. 1 equal to exponential of 3z plus c2 exponential of minus z, because here values of m have -1 and 3, that will have cf. So next step, particular integration. Particular integrations we have, देखो ये जो इसको हम लोग डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, इसको ब्रेक करके हम लोग ये लिख सकते हैं d माइनस 3 इंटू डी प्लस 1 एज ए फैक्टर फॉर्म में, और कैपिटल x जो है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, z इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z. यार इधर है कि नहीं बोलो अभिषेक कुमार? Yes, sir. Yes. अब इसको हम लोग बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके लिख सकते हैं. देखो तो 1/4 इंटू डी 1 बाई डी माइनस 3 माइनस 1 बाई डी प्लस 1, इसको लिख सकते हैं एज ए पार्शियल फ्रैक्शन. Yes, sir. तो लिख सकते हैं, दैट्स वेरी गुड. ठीक है, अब हियर z इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z. ठीक है, तो फर्स्ट वी अप्लाई द रूल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z. ठीक है, इसको अप्लाई करो. एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z को बाहर निकाल दो, एक्सपोनेंशियल 2z 4, और जहां जहां d है d के जगह क्या हो जाएगा d प्लस 2. ठीक है, तो d प्लस 2 माइनस 3 करोगे तो d माइनस 1 नहीं होगा. यहाँ पर d प्लस 2 प्लस 1 करो तो d प्लस 3 हो जाएगा. इंटू जेड वी हैव, इधर है कि नहीं बोलो? ये नहीं समझ आया सर. हाँ, ये तो समझ में, जेड इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z वी हैव. जेड इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, ये क्लियर है? यस सर. ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप वी हैव, फर्स्ट वी अप्लाई द एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z. इसका काम पहले करो. फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z को बाहर निकालो. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z को बाहर निकाल दो बाय 4. ठीक है, इसका काम पहले करो. ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z को बाहर हम निकाल दिए, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है कि नहीं बोलो? ठीक से समझो, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है. यस सर. हाँ, तो जहां जहां d है d प्लस 2 हो जाएगा. सर 1/4 कैसे आया? इसको एलसीएम लो, इसको तुम एलसीएम लो पहले. फर्स्ट एलसीएम लो, इसका एलसीएम लेके तुम सॉल्व करो कितना हो रहा है. पहले इसको समझो ठीक से. एलसीएम लो, एलसीएम नीचे लो, इसको एलसीएम लोगे तो क्या ऊपर में क्या बचेगा बोलो? 4 बचेगा. 4 बचेगा. तो 4 इस 1/4 जो लिखे हैं तो कटेगा नहीं. ठीक है सर, समझ गया. समझ गए? तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z का काम पहले करेंगे हम लोग. एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z का काम पहले करो, डिवाइड बाय 4. ठीक है, इन ब्रैकेट यहाँ पर जहां जहां तुम्हारे d है, d की जगह क्या हो जाएगा, d प्लस 2 हो जाएगा. तो यहाँ पर d प्लस 2 माइनस 3 करोगे तो क्या d माइनस 1 हो जाएगा. यहाँ पर d प्लस 2 प्लस 1 तो d प्लस 3 हो जाएगा. इंटू जेड. क्लियर है कि नहीं बोलो? सर +2 क्यों किया वापस? प्लस 2 क्यों किए? इसके पहले दिखाए थे ना हम लोग. कौन? आवाज क्लियर नहीं है सर. इसके प्रीवियस क्लास में, पिछला क्लास में हम लोग जो सॉल्व किए थे,
कि पार्टिकुलर इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ z इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ z, इस फॉर्म में कैसे करेंगे इसको? पहले सॉल्व करने का तरीका ये है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का काम करेंगे, उसके बाद वेरिएबल का काम करेंगे। दोनों वेरिएबल है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियल है। जब टू फंक्शन वी हैव अलजेब्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, the first we solve the exponential function, exponential function पहले करेंगे, उसके बाद अलजेब्रिक फंक्शन में जाएंगे हम लोग, ठीक है? सर तो वो फिर से एक बार बता दीजिए। हाँ तो कल ना हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, इसलिए कल नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था, तो समझ नहीं आ रहा था। वो जो ये ऐसे +2 किए ना, बोला नहीं समझ आया था सर, एक बार बता देते सर। so okay, प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाए थे देखो, उसी प्रकार जो प्रॉब्लम है जो तुम बोल रहे हो, यहाँ पर देखो, टू फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रेशन व्हेन कैपिटल X इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ax इनटू v, और v इज एनी फंक्शन ऑफ x, ठीक है? वैसे बोल रहा है यहाँ पर d ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ax इनटू v अगर है, ठीक है? वहां पर देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कर दिए, देखो d एक्सपोनेंशियल ऑफ x फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, of second function we have v, and derivative of exponential function, so we have a into exponential of x. The exponential of ax will have common, देखो उसके बाद क्या d plus a into v, तो जहां जहां d है वहां d plus a हो जा रहा कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ ax का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर a है, देखो एक्सपोनेंशियल ax का, इसका माने एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट क्या है? a है, जब d है कि जब d plus a हो गया, ठीक है? इसका प्रॉब्लम तो ही किया था, देखो ना अलजेब्रिक इक्वेशन क्या लिखे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 0, तो m का वैल्यू क्या 2 1 1, तो cf इक्वल टू c1 प्लस c2x एक्सपोनेंशियल ऑफ x हो गया। पार्टिकुलर इंटीग्रेशंस वी हैव 1 बाय इसको क्या है d स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस 2d वी हैव, प्लस 1 भी है। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ x स्क्वायर इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 3x वी हैव, ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग इसका लिमिट क्या होगा, ये d - 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये भी लिख दिया हम लोग। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल का काम पहले करेंगे, तो जहां जहां d है, d के जगह क्या d + 3 हो गया, उससे x स्क्वायर आ गया। अब देखो एक्सपोनेंशियल काम तो तुम्हारा हो ही गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, d + 2 का होल स्क्वायर हो गया, जिसके कारण 4, ये जो 2 है 2 को कॉमन कर लिए तो 1/4 कॉमन हो गया, इस फॉर्म में सजा दिए, बाइनोमियल थ्योरम में ब्रेक कर दिए, सॉल्व कर दिए। उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम चीज वही कर रहे हैं, देखो सेम चीज, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z z इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z, एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z वी हैव, यहाँ पर देखो 2z को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर d के जगह क्या d + 2 हो गया, माइनस 3 तो d - 1 हो गया, यहाँ d + 2 + 1 दैट इज d + 3, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, तो -1 कॉमन ले तो 1 - d के पावर -1, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो तो 1/3 रहेगा, तो 1 + d + 3 का पावर टू द पावर -1 इनटू z, सो d + 1 + d in plus 1 + 3 into 1 in minus d - 3 into z, so z + 1 + 1/3 into z -1/9, ब्रेक कर दो, ये मिल गया तुमको, ये तुम्हारा सॉल्यूशन में भी मिल गया, ठीक है? कंप्लीट सॉल्यूशन जो निकलेगा y इक्वल टू क्या, c1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 3z प्लस c2 एक्सपोनेंशियल ऑफ -3z इक्वल टू दिस, इस z के फॉर्म में निकला, तो जहां जहां z है उसको हम x के फॉर्म में लिख दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ 3z इक्वल टू क्या हो जाएगा x3, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम कंसीडर किए हैं, देखो लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ z इक्वल टू क्या है x है,
वहां पर देखो ना एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड का क्या लिखेंगे, देखो ना यहाँ लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड क्या हुआ, एक्स लिखा हुआ था, एक्सपोनेंशियल 3z क्या एक्स क्यों हो जाएगा, ये भी आप बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो हेलो सर। आप बोलो। सर पीडीएफ में सर अच्छे से समझ में नहीं आता सर। हम तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं ना, एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बता भी रहे हैं, अगर तुमको समझ रहे तुम्हारा प्रॉब्लम को, ठीक है, एक्चुअली कोड में जाते तो तुम लोग और अच्छा से समझाते तुम लोग को, ठीक है। यस सर। एक्चुअली तुम लोग ऑनलाइन सर लिख लिख के बताते ना सर तो अच्छा तो लगता कॉपी है। पे समझा दीजिए ना सर, बना के पीडीएफ में भी उतना ही टाइम लगता है। कॉपी में समझाएंगे लेकिन तुमको शेयर कैसे करना, हमको तो वही सभी चीज समझ नहीं आ रहा हमको ना। सर सर व्हाइट बोर्ड फोन का कैमरा से डायरेक्ट पढ़ाइएगा। कैमरा ऊपर में रख सर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आता पीडीएफ में सर। सर बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होता है तो फिर समझ में नहीं आता सर पीडीएफ में। सर कॉपी में समझा दीजिएगा और पीडीएफ वहाँ एलएमएस में भेज दीजिएगा, कोई अच्छा रहेगा। यस सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो बाबू। सर पीडीएफ एलएमएस हम लोग को भेज दीजिएगा और कॉपी में समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। लेकिन हम तुम्हारा बात को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम हम कॉपी में बना के दिखा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम तुमको उस तरह से मैंने पेज में बनाएंगे, तुमको शेयर कैसे करेंगे वो चीज मेरे पास नहीं है ना। मोबाइल से होगा, बोलो शेयर शेयर मोबाइल से शेयर होगा, जब हम कॉपी में बनाएंगे उसको शेयर कर पाएंगे। सर कैमरा से हो जाएगा सर। अच्छा कैमरा ऊपर में कर लीजिए स्टैंड में और डायरेक्ट दिखाइए। वही तो तुमको बोल रहा हूँ, वही तो कैमरा मेरे पास नहीं है। सर फोन होगा ना, हाँ फोन होगा ना सर, फोन। फोन, फोन से होगा, मोबाइल से। हाँ सर हो जाएगा, उज्जवल सर उसी तरह पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं फोन नहीं है उनके पास, वो एक पैड है, क्या बोलते हैं जब प्रॉब्लम। नहीं वो पैड है। सर आकाश सर भी फोन से ही पढ़ाए थे। अच्छा ठीक, हम देखेंगे फोन से शेयर, फोन से अगर उसको शेयर कर पाएंगे कि नहीं, देखेगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल इस प्रॉब्लम को समझे, स्टेप को समझे, स्टेप को अगर समझ पाओगे तो बना लोगे, अगर कोई स्टेप में तो डाउट लगेगा ना तब बोला बताओ हमको, उसको हम क्लियर कर देंगे। एनीवन स्टूडेंट बोलो। अभिषेक। यस सर। हाँ बोलो क्लियर है। हम एक्चुअली हाँ सर। इसको पहले क्लियर कराना चाहते हैं क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप को सिलेबस कंप्लीट करने का भी फिलहाल हमको मन नहीं है कि जोर जबरदस्ती का सिलेबस खत्म करना है, टाइम बहुत है तुम लोग के पास, ठीक है। स्टेप को क्लियर होगा तो लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर जेड को हर हर क्वेश्चन में log x ही लेना है। हाँ इसमें एक्चुअली जो वेरिएबल तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, इस वेरिएबल को हटाने के लिए ही तो हम लोग z इक्वल टू log ऑफ x किए, log ऑफ x लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ 2z बना, ये जो रूल बना x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन इक्वल टू वाई, ये जब बन गया
तो हमने तुम्हारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बोलो तो, डी टू वाई बाय डी स्क्वायर वाई को क्या लिखेंगे, डी टू वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस 2dy कैन बी टेन एज 2dy by dz minus 3y equal to z into exponential of 2z. This equation we have the linear differential equation with constant coefficient. ये एक्चुअली वेरिएबल कोफिशिएंट था, इसको कन्वर्ट करके हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में ले आए, तब ना हमने एक्सैक्ट इक्वेशन लिखे। क्लियर है कि नहीं, बोला बात को समझो। Actually, given differential equation, we have the variable coefficient and we transform to constant coefficient using the values of z equal to log of x. ये पुट कर दिए तब तक आएगा ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट। Anyone student बोलो। अभिषेक कुमार, अबुल कमाल, यस सर, समझ में समझ में आ आ रहा गया। कि नहीं आ रहा है? यस सर, ये ला मुझे आ गया। आ गया ना? बाकी जो स्टूडेंट, एनीवन? मंगलम कुमार, अजय कुमार, यस सर, आ गया समझ। एक्चुअली स्टेप को समझोगे तो समझ में जरूर आएगा, ठीक है। समझे ना? तो ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू ए सिलेबस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व उसी तरह करेंगे हम लोग, है ना। देखो, सॉल्व x प्लस ए का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू एक्स। पुट, देखो हियर x प्लस ए को कंसिडर किया u, समझ रहे हो ना। देखो du by dx equal to 1, so dy by dx equal to dy by du into du by dx equal to dy by du हो गया। d2y by dx square equal to d1 d by du से कन्वर्ट कर दिए तो ये बन गया। तो गिवन इक्वेशन रेड्यूसेस टू u के फॉर्म में आ गया। देखो u स्क्वायर d2y by dx u स्क्वायर माइनस 4u dy by du प्लस 6y इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ u में कन्वर्ट कर दिए। अभिषेक कुमार, हाँ सर। इसको इन टर्म्स ऑफ यू कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। माने एक्चुअली जो तुम्हारा एक्चुअली तो वेरिएबल ही है, यू तो वेरिएबल ही है ना। अब हम लोग यू इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड को पुट करेंगे, सो दैट जेड इक्वल टू लॉग ऑफ यू एंड डी बाय डी जेड इक्वल टू कैपिटल डी। दैट्स व्हाई वी हैव द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैन बी रेड्यूस्ड in the form of d square 5d plus 6y equal to exponential of z minus a। एक्जेक्ट इक्वेशन भी निकालो उसी तरह, और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन जो प्रीवियस मेथड में पढ़ा दिए हैं वो भी सॉल्व कर दिए। देखो बहुत इजी है, ठीक है। अभिषेक कुमार क्लियर है? अजय कुमार, यस सर। ये प्रॉब्लम बहुत इजी है, दिखने में लग रहा है कि बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन सो इजी, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए सर। तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस के लिए हम दो प्रॉब्लम को दिखा दिए, दो प्रॉब्लम को सॉल्व करो और इसके आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो है सिमिलर है प्रॉब्लम। सर नोट्स एलएमएस से डाउनलोड नहीं हो रहा सर।
हेलो। हो जाएगा। व्हाट्सएप पे तुम लोग CSC सर LMS खुल नहीं रहा। सर ग्रुप पे CSC भेज दीजिएगा ना सर। में, ठीक है, दे देंगे, नो प्रॉब्लम। सर जो थर्ड लाइन में dy बटा dx इज इक्वल टू dy बाई du इंटू du बटा dx, ये वाला कैसे लिखते हैं सर अपने से? ये नहीं समझे? उसके ऊपर वाला सर। ये हाँ सर, हाँ सर, वो वाला मतलब कैसे लिखते तो डी एक्चुअली x बाई a को कंसिडर के u, तो du बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x में करो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना। विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा ना। हैं? यस सर। 1 और dy बाई dx को चेंज कर दिए, इन टर्म्स ऑफ u में कन्वर्ट कर दिए। dy बाई dx को चेंज करो तो dy बाई du इंटू du बाई dx, du बाई dx क्या है? 1 दिया dy क्या? बोलो। dy बाई dx हमेशा लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। यस सर।